Dear students, welcome back to the new video. This video is going to be very important for those students who have a standard mathematics in this board examination this year, and I think you all have done the revision completely. So, but there are many students who have still confusion about the word problems in which they have to apply either the LCM and HCF. They are confused many a times, and many of the students are there. So in this video I am going to explain and give you few important tips. If you are able to understand it properly, you can easily decide whether you have to apply the LCM or HCF. And one of the important thing is that in this year sample paper there is such question, they have also given these types of question. तो आइए हम शुरू करते हैं और आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन ना हो. एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो. आई विल बी ओनली डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू डिसाइड वेदर द एलसीएम विल बी अप्लाइड और किस तरह के क्वेश्चन में हमें सिर्फ एलसीएम का यूज़ करना है. तो आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हमने जो यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हो जहाँ पे आपको डिसाइड ये करना पड़े कि कॉमन अकरेंस ऑफ द इवेंट्स हैं या ऐसे सिनेरियोज वेयर इवेंट्स नीड टू बी हैपन टुगेदर और एट द सेम टाइम. ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. यू हैव टू लुक फॉर कोई ऐसा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कॉमन अकरेंस हो, रिपीटिंग हो, टुगेदर हो. तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी 3 alarms clock ring their alarms at a regular intervals of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? So the question is, you can see there is a common occurrence and together word has been used. So obviously as per the first tips you have to apply the LCM. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. सो यू कैन सी दैट वी हैव द 20. So 20 can be written as 2 raised to the power 2 and 5. Similarly 25 can be written as 5 raised to the power 2, and similarly 30 can be written as 2 into 3 into 5. So let us find the LCM now. And how we have to find the LCM? So LCM will be, I think you all know LCM in this case is going to be, LCM is, I think you all know how to find the LCM using the prime factorization method. So in this case LCM will be 2 raised to the power 2 and 5 raised to the power 2 and the 3 will be there. So it is going to be 4 and 4, it is going to be 300. So it is the 300 minutes. So LCM we found 300 minutes. So first they have beeped together at 12 noon. So after 12 noon, so we have to convert this 300 into hour. So 300 divided by 60, so you are going to get the 5 hours. Means after 5 hours they are going to beep together again. So the answer, correct answer will be 5 p.m. Now first thing I have told you that if there is something in which they are asking the events is occurring together and repeating, so in this type of question you have to apply the LCM. अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम मान लेते हैं कि LCM अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें LCM करना है या HCF करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आई डोंट थिंक सो इफ़ यू आर क्लियर अबाउट हाउ टू फाइंड द LCM एंड HCM, इट विल टेक वेरी शॉर्ट टाइम. तो अगर हम मान लेते हैं एज ऑफ नाउ लेट अस फाइंड द HCF ऑल्सो. अगर इन तीनों का हम HCF फाइंड करेंगे तो आपको HCM जो आएगा 5. अब हमें यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना है. जो मेन चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, वॉट एवर द क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, if it is related to word problem, whether it is from the quadratic equation, pair of linear equation, even from the trigonometry or some other chapters, अगर आंसर आ रहा तो उसको थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना भी है. अगर हमने इन तीनों का HCF फाइंड कर लिया एंड दैट इज़ द 5, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा 5 इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल आंसर हो सकता है? 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स के बाद ही कैसे होगा? एक जो है 20 मिनट्स के बाद हो रहा है, दूसरा 25 मिनट्स के बाद हो रहा है और तीसरा जो है इंटरवल उसका जो है 30 मिनट्स है. तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि LCM फाइंड करना है या HCF हमें यहाँ पे लगाना है, तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ करके इस चीज़ को आप यहाँ पे कर सकते हैं. तो पहला पॉइंट है कि जैसे यहाँ पे इवेंट हो, रिपीटिंग की चीज़ें हो रही है, अकरेंस हो, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं. अब इसके लिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा. अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी सैम्पल पेपर्स में और भी बहुत सारे बुक्स में आपको मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि 3 bulbs white, red and yellow flash at intervals of 80, 90 and 110 seconds, and if all 3 bulbs flash together at 8 am, then
द टाइम एट विच दे विल फ्लैश ऑल टुगेदर अगेन इज, यहाँ भी ऑल टुगेदर हो रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको एलसीएम अप्लाई करने हैं। अगर यहाँ भी आप एचसीएफ अगर कर दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लॉजिकली सोच के देखें, वहाँ जो भी आंसर एचसीएफ आएगा वो उसका आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। एचसीएफ इज गोइंग टू बी नॉट द आंसर फॉर दिस केस। तीसरा केस लेते हैं जहाँ पे सेम इवेंट की बात हो रही है कि 3 buses A, B, C डिपार्ट फ्रॉम ए स्टेशन एट ए रेगुलर इंटरवल्स एंड अगेन टुगेदर। यहाँ इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी बात हो रही है एट व्हाट टाइम दे डिपार्ट टुगेदर अगेन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन में आप भी आपको एलसीएम अप्लाई करने हैं। यहाँ और भी केसेस हो सकते हैं, मान लिया कि सर्कुलर कोई ट्रैक है, इसमें बोला जाएगा 2 स्टूडेंट्स है, आपके 2 फ्रेंड ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, तो किस टाइम में आप जाके ऐसा पॉइंट आएगा कि आप जो है मिल सकते हैं, तो वहाँ भी रिपीटिंग की चीज़ हो रही है, तो वहाँ भी आप एलसीएम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी इवेंट्स है, कोई इवेंट्स है, 3 इवेंट्स आर देयर एंड ABC अकर एवरी 6 days, 8 days एंड 12 days। नाउ द क्वेश्चन इज कब एक साथ ऑल 3 इवेंट्स इज गोइंग टू अकर ऑन द सेम डे। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको क्या यूज़ करना है, एलसीएम यूज़ करना है। अब यहाँ पे इस तरह का भी क्वेश्चन आता है 3 ट्रैफिक लाइट्स A एंड B C। सो आप इस तरह के क्वेश्चन को जा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मैं PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं, ये तो पहला हो गया जहाँ पे रिपीटिंग की बात हो रही है, रिकरिंग इवेंट्स की बात हो रही है। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन कहाँ पे आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन NCERT एग्जाम्पलर एंड आई विल सजेस्ट यू प्लीज गो थ्रू द NCERT एग्जाम्पलर इवन फॉर दिस ईयर, ऑल्दो दैट इज नॉट कम्प्लीटली अपडेटेड, लेकिन आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपके सिलेबस से मैच होता है। नाउ यू कैन सी दिस इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस रिलेटेड। नाउ द क्वेश्चन इज once there is involving multiple entities and moving or walking together may involve the use of LCM, and this is especially true when you need to find the same time when they will meet or complete a task simultaneously। अब आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, on a morning walk 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively। So what is the minimum distance? अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी कहनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस तरह से याद किया हुआ कि मिनिमम है तो उसमें हम जो एलसीएम लगा देंगे, हाईएस्ट है तो उसमें एचसीएफ होगा, बट मैनी अ क्वेश्चन यू विल फाइंड दिस ट्रिक विल वर्क। बट मेरा ये कहना है कि आप इन चीज़ों के सारे ये सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम को वर्ड को देख करके यू कांट अप्लाई द एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा कि कैसे ये वाला लॉजिक वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो हमें ये समझना कि यहाँ मिनिमम डिस्टेंस जो डिस्टेंस है, लेकिन अब यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर किसी ने एचसीएफ फाइंड कर लिया, तो इसका अगर आप एचसीएफ फाइंड करते हैं इन दिस केस यू विल सी द एचसीएफ इज गोइंग टू बी 1 ओनली 40। अगर आप मैं लेता हूँ यहाँ पे 40, 42 और दूसरा हमारे पास है 45, यानी 3 आदमी है, स्टेप का लेंथ है, तीनों ने एक साथ चलना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है एक का स्टेप कम है, एक का उससे थोड़ा ज़्यादा है और तीसरा ज़्यादा है। कह रहा मिनिमम कितने डिस्टेंस पे ये कवर करें ताकि क्या होगा, द सेम डिस्टेंस दे विल कंप्लीट इन कंप्लीट स्टेप्स, वो दे आर गोइंग टू कवर वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, कितने स्टेप्स में। अगर यहाँ पे किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, एज आई हैव डिस्कस द थिंग्स, आई थिंक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड यहाँ पे हमें एलसीएम यूज़ करना है या एचसीएफ यूज़ करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर मान लिया कि आपने एचसीएफ ही इसमें लगा दिया, अगर आप देखें तो एचसीएफ यू आर गोइंग टू गेट द 1। अब 1 इलॉजिकल आंसर यहाँ पे समझ में नहीं आया, 1 का क्या यहाँ एप्लीकेबल है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। अगर 1 होगा तो सेंटीमीटर आएगा, अगर हमने सेंटीमीटर लिया तो 1 सेंटीमीटर कोई आंसर इसका हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसका आपने एलसीएम फाइंड किया, तो एलसीएम जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यू आर गोइंग टू गेट 2520, जो कि एक लॉजिकल है। और तीसरा पॉइंट ये भी है कि जितने भी यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारे इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको करके आप यहाँ पे इसको मैच कर सकते हैं। तो इस तरह के डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या यूज़ करने हैं, यू हैव टू यूज़ द एलसीएम। और वो मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स कि वेदर देयर विल बी एलसीएम और एचसीएफ, और इस केस में जब आप दोनों निकाल के देखिए और आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा लॉजिकली हमारा गलत आ रहा है या सही आ रहा है। तीसरा केस हमारे पास ये आता है इस तरह का क्वेश्चन कि जहाँ पे अगर हमें पैकिंग से रिलेटेड अगर हमारे पास क्वेश्चन है, पैकिंग फुल सेट्स विथ इक्वल क्वांटिटीज़,
ये भी इस तरह क्वेश्चन, ये सारे बहुत ही मेहनत के बाद मैंने बहुत पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, आई हैव कलेक्टेड दिस क्वेश्चन एंड इफ यू आर जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स प्रॉपरली, I think you can easily solve the question whatever they are going to ask in the board exam. अब देखो यहाँ पे in this question, what is the question? In gardening event, flower seeds were being sold in the 24 each plant 24 each and plant pots were being sold in the pack of 32 each. अब question है, if you want full packs of both the same number of flower seeds and the plant pots in each box, how many of each would you need to buy? अब यहाँ पे you can see in these types of question, if someone is finding for example the HCF, तो इसका HCF you are going to get the 8, but as the packing the full sets and the equal quantities, तो अगर आप यहाँ पे देखें 8, so at 8 is not logically true, but if you finding the LCM, so LCM in this case will be LCM of the 24 and 32, 24 and 32 will be the 96. आप जो भी method use करें, if it is the 2-3 marks you have to also show the steps, so in this level you have to only use the prime factorization method. So total 96, now they are asking to each box, so 94 को if you have to divide by 4, so the 24 the answer will be 4 for the packs of the flower seeds, and 96 will be again divided by 32, so this is going to be 3. So this is the answer for this question. Again you can see the similar question is there. The two brands of notebooks are available in a packs of 24 and 15 respectively. If you need to buy an equal number of notebooks of both the kinds, what is the least number of packs of the each kind you would need to buy? So in this case again they were asking, so if you need equal number of equal quantities and full sets in the same question, so in this question also you have to apply the LCM. तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ. यहाँ सबसे पहले 24 है, तो 24 को you have to see 24 can be written as 2 raised to the power 3 and this is going to be 3. Next is 15. So 15 will be written as 3 into 5. So in this case LCM is going to be, LCM of these two numbers will be, it is going to be 120. अगर आप इसको फाइंड करके देख लिए LCM 120 आएगा. अब क्या करेंगे, अलग अलग पैकेट हमें चाहिए, तो एक में 24 दूसरा में 15 है, सो 120 विल बी डिवाइडेड बाय 24, सो दिस द आंसर विल बी द 5 फॉर द वट एवर द पैकेट इज द 24 पैक्स ऑफ द one brand, and again 120 will be divided by 15, so in this case you are going to get the 8. So the एक का पैकेट होगा हमें 8, so what is the least number of packs of each? So the least number of pack is the 5 for one case and 8 is for the second case. अगर for example again I am repeating, now I am going to finish this video now. If you have, suppose you have found the HCF, अगर आप इसका HCF find करें तो HCF you will be getting 3. अब बताइए 3, अब 3 को हम क्या करें, but they are asking 3, but if someone has used the 3 and they found the 3, so can you logically think 3 can be answer for this question? No, so that is not true. So every question first you have to think that what is the, you have to go through logically, and whatever the answer, if you are confused, solve it. You can apply both the methods if you have the time, and think carefully, you will automatically get that what should be applied. So this was all about how the LCM can be used for the different word problems, and this is the for the enough if you are completely able to understand these things. So I have taken whatever the important question were there, I have covered all these things. You can go through. In the next video we will be covering about how in the word problem and which type of word problem HCF can be applied. So if you think this video was helpful for you, so you can share among your friends, and if you are new to this channel you can also subscribe and like the video. So let's meet in the next video.